let's discuss the second topic. The first topic was nucleophilic substitution. In that we have discussed the comparison of haloalkanes and haloarenes. We have discussed that haloarenes are less reactive than haloalkanes. Okay, and we have discussed the 4 reasons behind that. Next is our replacement by hydroxyl group. First, I will take the example of chlorobenzene. Okay, this is what? Chlorobenzene. Now, if I want to replace this chlorobenzene by a nucleophile such as OH minus, okay, then this substitution is not that easy. Instead of this, we can take NaOH, then definitely NaCl will be our byproduct. This bond will break. Okay, and C plus and Cl minus. With this C plus, again I am saying this is C plus. Okay, just a second. C plus and Cl minus. Okay, and here you know that Na plus and OH minus. But due to sp2 hybridization character with this carbon, this breaking of bond is quite difficult. We know that because in last class only we have discussed. ओके, एक तो बॉन्ड लेंथ इसका छोटा है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा. दूसरी बात हमने देखी थी हाइब्रिडाइजेशन वाली. तीसरी बात हमने देखी थी कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, यस. स्टिल अगर हमें ये रिएक्शन करनी है तो डेफिनेटली वी हैव टू मेंटेन सम रिएक्शन कंडीशन. That is nothing but 623 Kelvin temperature and a 300 bar pressure. Okay, or atmospheric pressure. This is the condition. And the name of this process is nothing but Dow process. Okay, so definitely this can be asked to you in the exam. Okay, so we will see this reaction in the chapter of alcohol, phenol and ether. Definitely here the name of this compound is hydroxybenzene. Okay, hydroxybenzene is the IUPAC name, and the common name of this compound is what? Phenol. Again I am saying this is haloarene. The reaction with the haloarene is quite difficult due to pi bond character, resonance effect. Second is sp2 hybridization, more electronegativity. Due to this CCl bond length is shorter, and due to that it is not easy to break this bond, so we have to maintain some reaction condition. Okay, so this is 6 to 8% aqueous NaOH reaction will carried out. OH minus is our nucleophile. Definitely this is a nucleophilic substitution, but जैसे हम हेलो अल्केन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली कर लेते हैं, वैसे इसमें पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन सम रिएक्शन कंडीशन. ठीक है, अभी एक बात और हमें करनी है यहाँ पे कि हेलोएरीन्स में कैसे हम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे. अभी सबसे पहले जो है हम पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को रख लेते हैं. ठीक है, और N will be positive, this oxygen will be negative. उसके बाद हम ऑर्थो पोजीशन पे NO2 को रखेंगे और इफेक्ट देखेंगे, और मेटा पोजीशन पे रख के देखेंगे. पहली बात तो ये है कि हेलोएरीन्स में डेफिनेटली रिएक्टिविटी इज लेस. टू इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी वी हैव टू इंट्रोड्यूस द
electron withdrawing group at ortho and para position. Definitely if we introduce the electron withdrawing group at meta position, that does not increase the reactivity of halo arenes. Yes, but we should understand this with the help of these resonating structures. First, when this nucleophile will attack on this carbon, ठीक है, बिकॉज अगर ये जो ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल है तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे ही अटैक करेगा, ठीक है ना। तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लोरीन है, ये कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर OH जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अभी ये जो बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैर के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन आ जाएगी, बिकॉज दिस कार्बन हैज गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पैर और नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हियर वी हैव definitely OH and Cl. The third resonating structure will be like, now this bond is shifted here. This is our bond. Here we have a bond. Now this electron pair will shift with this carbon. Okay. Definitely here we have NO2 group. Don't forget to write this. Okay. Yes. So these are the possible resonating structures. After this is slow step. Okay. After this step, now leaving group will separate and these will form a bond over here. And this is a fast step. Okay, now in the last step, this bond will, these electrons will form pi bond here. Okay, these two bonds are as it is, and here we have a nucleophile and this leaving group will separate by taking this negative charge. Okay, so we can say that this negative charge will form here at the ortho position, here at the para position, here also at the ortho position, ठीक है। तो वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं तो उतनी पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट होती है इतनी पोजीशन तो हम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस एट ऑर्थो पोजिशन। तो ऑर्थो पोजिशन पे आप देख सकते हैं कि सेम हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया है यहाँ पे। ओके, और ये तीन हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड हमने शिफ्ट करवा लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। फिर हमने ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करवा लिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मुझे ऐसे मिले कि जहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो वो रीज़न है कि वो ये पोजीशन को एक्टिवेट कर लेगा, मीन्स कि NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे हो तो वो हेलो एरीन की रिएक्शन जो है वो इजी कर देगा और इजीली न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप क्या है, सेपरेट हो जाएगा। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं यही बात मेटा पोजीशन को लेके, ठीक है। तो अभी आप एक बात यहाँ पे देख लो कि मेटा पोजीशन पे जब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा है और अभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो स्लो स्टेप है, क्लोरीन और OH यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है। अभी ये बॉन्ड जो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आया है।
अभी ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो वापस से ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है, फिर लिविंग ग्रुप सेपरेट हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। तो अब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा है तो कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है मेटा, ये जहां पे NO2 ग्रुप जुड़ा है वहां पे वो वाला नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है। आप देख सकते हैं 1 2 and 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक भी बार मेटा पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं आया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पोजीशन पे बढ़ने वाली नहीं है, मीन्स कि मेटा पोजीशन कभी भी एक्टिवेट नहीं होने वाली है। अगर मेटा पोजीशन कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी तो वो जो है वो हैलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजी नहीं कर पाएगा और उसकी रिएक्टिविटी से कोई भी इफेक्ट होने वाली नहीं है। वापस से अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑर्थो पे आप देख सकते हो कि NO2 ग्रुप जहाँ है वहाँ पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आने वाला है और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे नेगेटिव के साथ रेजोनेंस में रहेगा। ठीक है, अभी पैरा का जो देखा था हमने उसमें भी हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे आपको देखा था, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ओके और ये रेजोनेंस में है, ये इलेक्ट्रॉन पैर ये कार्बन के साथ है, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में है। दूसरी बात ये पोजीशन एक्टिवेट हो गई है और वहां पे NO2 जुड़ा है और ये वाली पोजीशन ही एक्टिवेट है तो डेफिनेटली ये रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक। आई होप यू क्लियर्ड योर इन योर माइंड। अभी तो हमने बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो वो भी आपको क्लियर हो चुका है। सबसे पहले पोजीशन पे NO2 को रखेंगे और इफेक्ट देखेंगे और मेटा पोजीशन पे रख के देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हेलो एरिन्स में डेफिनेटली रिएक्टिविटी इज लेस। टू इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी वी हैव टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।